ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन वी टॉक अबाउट व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज a predefined data type and second one is user defined data type. So if we want to create a user defined data type in C programming, then we should go for structure. अगर आप C के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पर नोड को क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हैं स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा एक what is a structure, how to define structure in C programming, how to create structure variable in C, memory representation of structure members and how to initializing structure members, how to access the structure members in C programming, structure with array and structure with pointer, and lastly we talk about nested structure. आप structure के अंदर भी structure बना सकते हैं। So first, what is a structure? So structure is a user defined data type. It works similarly like array, but array में क्या होता था कि आप array में same type की value ही store कर सकते थे, but in structure we also store different types value in a single variable name. So structures help you in grouping items of different types in a single group. It stores the collection of different data types. Each element of a structure is known as a members. So what is the structure in C programming में हम आगे देख रहे हैं। If we want to create our own data type in C programming, then we should go for a structure. A structure is a user defined data type that can be used to group elements of different types into a single type. C structure is a collection of different data types which are grouped together and each element in a structure is called members. In C, there are cases where we need to store multiple attributes of an entity. So, for example, मान लीजिए कि आपको किसी स्टूडेंट फाइव स्टूडेंट्स का डेटा आपको स्टोर करना है। सो एन एंटिटी स्टूडेंट में है its name, string, roll number, int, percentage float. To store such type of information regarding an entity student, we have the following two approaches. अगर मुझे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट कि आप हर एक के लिए सेपरेट एरे बनाएं, जिससे आपको 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना तो आप एक इंटीजर एरे बना लीजिएगा जिसमें 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर हो सके। फिर आप एक फ्लोट एरे बना लीजिएगा जिसमें 5 स्टूडेंट का परसेंटेज स्टोर हो सके। फिर आप एक स्ट्रिंग एरे बना लीजिएगा जिसमें 5 स्टूडेंट का नाम क्या हो सके स्टोर। सो कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे for storing names, roll numbers and percentage. This is the first way. And the second way is use a special data structure to store the collection of different data type, which is nothing but this is structure. So ये हमने देखा why we use a structure in C programming. So अब हम देखेंगे how to define a structure in C programming, right? So before creating variables of a structure, you have to define a structure first. You can use the struct keywords to define structure. यहाँ पर आप syntax देख लीजिएगा, this is very important for you. Structure बनाने के लिए आप struct keyword क्या करते हैं, use करते हैं. So let's see the syntax. आई होप आपने सिंटेक्स देख लिया होगा। देन उसके बाद अब हम स्ट्रक्चर अगर क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। पहला स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है। दूसरा नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज नेम ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यहाँ पर आपने जो आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़े थे वही रूल आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। और यहाँ पर जो डेटा मतलब स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स होते हैं और मेंबर किसी भी टाइप का हो सकता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस टाइप डेटा टाइप एंड मेंबर नेम। डेटा टाइप में भी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर एरे आल्सो। सो
हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स इन सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल आप कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर के स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। साथ ही साथ जब हम स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहां पर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का भी यूज किया जाता है। सो लेट्स सी द हाउ टू डिक्लेयर क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करने के पहले आपको उस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो आउटसाइड ऑफ द मेन मेथड यू कैन बिल्ड स्ट्रक्चर। टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन सी use the struct keyword. You can declare structure variable outside or inside main method. Function to access a structure's data members. डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल अलोंग विथ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, मतलब आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को स्ट्रक्चर के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के डिक्लेयर करने के बाद भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप वहां पर डिक्लेयर करते हैं तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले। तो यहाँ पर सिंटेक्स मैंने आपको बताया था, एक बार वो देख लीजिएगा। स्ट्रक्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब डेटा टाइप आप बना रहे हो, आप डेटा टाइप का नाम किसी भी केस में लिख सकते हैं। इट में बी अपर केस, इट में बी लोअर केस, इट में बी प्रॉपर केस। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप बनाई प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप, दिस इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो कैरेक्टर एरे नेम फ्लोट प्राइस। यहाँ पर P1 इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल। अगर आपको कहीं पर भी इस नेम या प्राइस को एक्सेस करना है तो आप हमेशा उसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल से ही एक्सेस करेंगे। विदाउट स्ट्रक्चर वेरिएबल आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखेंगे? P1 डॉट नेम और P1 डॉट प्राइस। तो यहाँ पर बताया भी है मैंने कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, इट में भी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स। स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम देन फॉलोड बाय वेरिएबल्स नेम। तो यहाँ पर आपने पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, उसके बाद स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके भी आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप मेन मेथड में या किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्चर का, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नाम और वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर स्ट्रक्ट आपका क्या है? कीवर्ड है। और प्रोडक्ट, दिस इज द name of the structure and P is the name of the structure variables. So memory representation of structure member, जैसे कि आपको पता है जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप होती है उसका यूज आप किस पर्पस के लिए करते हैं? पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर आप इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस 4 बाइट का स्पेस लेगा। अगर आपने फ्लोट वेरिएबल बनाया तो वो मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस लेगा। लेकिन अब जो हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं स्ट्रक्चर, वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा, ये मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नेम आपने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया, तो आपको पता है एक कैरेक्टर मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है? 1 बाइट। अब आपने कैरेक्टर एरे की साइज क्या कर दी है? 100। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इस नेम नाम के वेरिएबल मेंबर के लिए 100 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। फिर आपने प्राइस लिया और प्राइस आपका फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट के लिए मेमोरी कितने बाइट की एलोकेट होगी? 4 बाइट की, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी में 104 बाइट्स का स्पेस लेगा। जितने भी मेंबर्स होंगे उसकी जो डेटा टाइप होती है उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आप उस स्ट्रक्चर की साइज कैलकुलेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने P नाम से एक वेरिएबल बनाया है तो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस ले रहा है? 104 बाइट्स। अगर आप 2 वेरिएबल बनाएंगे तो 208 बाइट का स्पेस लेगा। अगर आप 3 वेरिएबल बनाएंगे तो 104 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे एक इंटीजर 4 बाइट का स्पेस लेता है, 2 इंटीजर 8 बाइट का और 3 इंटीजर 12 बाइट का, वैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट वेरिएबल 104 बाइट का स्पेस लेगा, 2 प्रोडक्ट वेरिएबल 208 बाइट का क्या लेगा? स्पेस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी
हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रक्चर मेंबर्स, कि सर हमने स्ट्रक्चर बनाना देख लिया, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट करना देख लिया, अब हमें ये देखना है कि हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे इनिशियलाइज करेंगे. सो वी कैन इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर मेंबर्स डायरेक्टली. देयर आर मल्टीपल वे टू इनिशियलाइज स्ट्रक्चर मेंबर्स. आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो, आप यूजर से भी वैल्यू इनपुट ले सकते हो. तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा. ठीक, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं. पहले आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, फिर आपने लिखा स्ट्रक्ट प्रोडक्ट p इक्वल टू मोबाइल, मतलब नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज मोबाइल और 12,500 is the price. So let's see the example. How to access the structure member in C programming? To access structure members, we have to use dot operator. It is also called the member access operator. Use dot operator और यूज एरो ऑपरेटर. एरो ऑपरेटर बेसिकली हम पॉइंटर विद स्ट्रक्चर विद पॉइंटर में देखेंगे, इसको भी मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बोला जाता है. ठीक, टू एक्सेस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तो क्या लिखेंगे, पी डॉट प्राइस. टू एक्सेस द नेम ऑफ द प्रोडक्ट तो क्या लिखेंगे, पी डॉट नेम. मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हमेशा आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल. पहले हम स्ट्रक्चर को डायरेक्टली डिक्लेयर करना देखेंगे, फिर हम यूजर से इनपुट लेना देखेंगे. ठीक, सो आई एम गिव अ हेडिंग स्ट्रक्चर एग्जांपल. ठीक, तो यहाँ पर आप जो है पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट तो आपको यूज करना ही है. stdio.h. देन आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया. प्रोडक्ट नाम आप कुछ भी दे सकते हो, है ना. अब इसके अंदर कैरेक्टर एरे में आपने प्रोडक्ट का नाम ले लिया और मान लेते हैं किसकी, और फ्लोट में मैंने क्या लिया यहाँ पर, प्राइस. राइट, चाहे तो आप स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ बना सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए मैं अभी स्ट्रक्चर के वेरिएबल मेन के अंदर बना रहा हूँ. ठीक, तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, बट यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे तो स्ट्रक्ट कीवर्ड शुड बी यूज्ड एंड हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, प्रोडक्ट. बीटा टाइप का नाम और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैंने क्या दे दिया, पीबी. और आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर पहला नेम ऑफ द प्रोडक्ट मोबाइल एंड सेकंड वन प्राइस. प्राइस मान लीजिए न्यूमेरिक है तो इस टाइप से आपने पास कर दिया, फिर टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को क्या किया भाई, इनिशियलाइज किया. अब आपको क्या करना है, उसके मेंबर्स को प्रिंट करवाना है. तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट नेम ऑफ प्रोडक्ट. अब नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर एरे टाइप का. तो कैरेक्टर एरे के लिए आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, परसेंटेज एस. तो यहाँ पर आप लिख देंगे परसेंटेज एस और क्या आ जाएगा कि सर हाउ टू एक्सेस. आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, आपको कैसे लिखना पड़ेगा कि सर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम डॉट उसके मेंबर्स का नाम. राइट, ऐसे ही आपको प्राइस प्रिंट करना है तो लाइन चेंज करने के लिए पहले आप स्लैश लगा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. अब प्राइस फ्लोट टाइप का है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज एफ यूज करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पीबी डॉट प्राइस. सो फर्स्ट इसको सेव कर लीजिएगा आप. देन कंपाइल द प्रोग्राम. ओ सॉरी, देखिए यहाँ पर ये केस सेंसिटिव होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है, प्रोडक्ट का पी कैपिटल लिखा और आप जब उसका वेरिएबल बना रहे तो प्रोडक्ट का पी मैंने क्या लिखा है, स्मॉल, तो ये कंपाइल टाइम पे आपको एरर दे देगा. ठीक, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आ रहा है कि सर नेम ऑफ प्रोडक्ट मोबाइल और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लाइक दिस. So I hope you understand how to create a structure, how to declare a structure variable, how to initialize a structure members and how to access members of a structure. ठीक,
तो आप ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी ना, ये अभी लोकल वेरिएबल है ना, इसको आप मेन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। आउटपुट आपका यहाँ पर भी सेम ही आना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वे टू डिक्लेयर, इनिशियलाइज एंड एक्सेस मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से इनपुट लूं, तो आप अब यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के साथ ही उसको वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है, तो ये मेरा कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर आप यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो पहले मैसेज दे दीजिएगा प्रिंट की सर इंटर नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग या कैरेक्टर है, तो आप गेट एस यूज कर लीजिएगा। ठीक, हो सकता है कि प्रोडक्ट के नाम में क्या हो स्पेस, तो डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे नेम, लेकिन नेम नहीं आएगा, क्या लिखना पड़ेगा पी डॉट नेम। कहीं पर भी आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करेंगे हमेशा आपको क्या यूज करना है, उसके वेरिएबल का नाम। विदाउट स्ट्रक्चर वेरिएबल आप इसको यूज एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे ही आप प्राइस भी इनपुट ले लेंगे, तो पहले मैसेज दे दीजिएगा प्रिंट इंटर प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्कैनर परसेंटेज एफ, क्यों, क्योंकि अब आप फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट ले रहे हो, और गेटेस सिर्फ कैरेक्टर एरे के लिए होता है। आप उससे तो गेटेस के थ्रू फ्लोट इन टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे स्कैनर, राइट। देन एड्रेस ऑफ उस वेरिएबल का नाम, यहां पर भी आप ऐसा प्राइस डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे कि सर पी डॉट प्राइस, एड्रेस ऑफ पी डॉट प्राइस। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। अभी भी गड़बड़, अच्छा मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, सॉरी, यहाँ पर मैं पी भी दे दे रहा हूँ, सब जगह पी भी लिखा है इसलिए। ओके, यहाँ पर भी आप पी भी कर दीजिएगा। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, ओह सॉरी, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो मान लीजिए आपने प्रोडक्ट का नाम इंटर किया, कंप्यूटर, उसकी प्राइस मान लीजिए आपने लिख दिया, तो आप देखेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटर, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक इनपुट structure members from the user. Okay, so we move on next slide. तो ये हमने स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स देखे। देखिए जहां जहां पर भी आपने प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज किए हैं, आप वहां पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। सो द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी आर यूज्ड टू, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर विद एरे। अभी तक आपने इंटीजर एरे बनाया है, कैरेक्टर एरे बनाया है, अब फर्स्ट टाइम हम स्ट्रक्चर एरे बनाएंगे। जैसे मुझे 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नाम से एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा कि उस स्ट्रक्चर का ही एक एरे बना लूंगा। मतलब जो वेरिएबल में बनाऊंगा वो स्ट्रक्चर विद एरे वाला कॉन्सेप्ट वहां पर आपको यूज करना रहेगा। द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल एंटिटीज of different data type. The array of structure is also known as the collection of structure. Let's see an example of an array of structure that store information of 5 student and printed. So अब हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर विथ एरे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पर उसका नाम क्या दे देंगे आप, स्टूडेंट। ठीक, मान लीजिए मैंने अभी इसमें 2 ही फील्ड ले लिए, कैरेक्टर एरे में स्टूडेंट का नाम और इंटीजर में उसका रोल नंबर।
और अब आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था किस तरीके से आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोकल वेरिएबल बनाना है या फिर आपको ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि सर स्ट्रक्ट स्टूडेंट और नेम ऑफ द एरे वेरिएबल st, और यहाँ पर कितने स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है मुझे 5। अब मुझे बताइए कि ये st नाम का एरे वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा। तो नेम के लिए 100 बाइट, रोल नंबर के लिए 4 बाइट, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए 104 बाइट का स्पेस लेगा। अब अगर आपको 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना तो 104 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल 1020 बाइट मेमोरी आपकी क्या होगी यहाँ पर यूज। समझ में आया किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा भाई, आपको 5 स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर यूजर से इनपुट लेना है, तो आपको यहाँ पर लूप लगाने की जरूरत रहेगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डायरेक्टली आप चाहे तो ऐसा लिख दीजिएगा फॉर लूप। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, i इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि एरे में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। एंड i लेस कितने स्टूडेंट का डेटा 5, 0 इंडेक्स का स्टूडेंट, 1 इंडेक्स का स्टूडेंट, मतलब 0 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट होगा उसका नाम और उसका रोल नंबर, फिर 1 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट होगा उसका नाम और उसका रोल नंबर, फिर 2 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट होगा उसका नाम और उसका रोल नंबर, फिर 3 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट होगा उसका नाम और रोल नंबर, फिर 4 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट होगा उसका नाम और रोल नंबर। राइट, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। देन i प्लस प्लस, तो यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे प्रिंट इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, गेटेस लगा दीजिएगा भैया अगर आप ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, st ऑफ i डॉट नेम। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंट इंटर रोल नंबर, स्कैनर, अब रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, परसेंटेज d, देन एड्रेस ऑफ st ऑफ i डॉट रोल नंबर। ये आपने इनपुट लेने के लिए लूप लगाया। ठीक, अब ऐसे ही आपको प्रिंट करना है, तो आउटपुट के लिए भी सेम लूप लगेगा भाई ना। बस स्कैनर आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया आउटपुट, और तो यहाँ पर भी आप सेम लूप लगा लेंगे सर फॉर i इक्वल टू 0, i लेस 5 एंड i प्लस प्लस। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, वापस प्रिंट करवा देंगे printf स्लैश n नेम परसेंटेज s, रोल नंबर परसेंटेज d। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि सर st ऑफ i डॉट नेम कॉमा st ऑफ i डॉट परसेंटेज। राइट, सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम। अच्छा, रोल नंबर है, सॉरी मैंने गलती से पर लिख दिया ना, दिस इज रोल नंबर नॉट अ परसेंटेज। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगेन फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो इसने स्टूडेंट का नाम मान लीजिए मैंने क्या एंटर किया रहा, रोल नंबर 121। अब देखिए नेक्स्ट टाइम ये क्या कर रहा है, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम को स्किप कर दे रहा है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप नंबर के बाद कैरेक्टर एरी या स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तो वो जो इंटर की होती है उसकी आस्की वैल्यू बफर में रह जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए आप एक फंक्शन यूज करते हैं f प्लस stdin, और वो फंक्शन आता है आपका किस हेडर फाइल से, stdlib.h से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब इनपुट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप पहला वाला तो आपका प्रॉपर आ रहा था, यहाँ पर आप कर दीजिएगा कि सर a प्लस, और यहाँ पर पास कर दिया आपने stdin। राइट, सो अगेन एक बार कंपाइल कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप
नंबर के बाद स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे इनपुट लेते हैं। इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ रोल नंबर 120। अब देखिए प्रॉपर आ रहा है, इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट दीपक, रोल नंबर 122। इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट संजय, रोल नंबर 123। इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट अमन, रोल नंबर 124। इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट आकाश, रोल नंबर 125। तो यहाँ पर देखिए इसने आपसे 5 स्टूडेंट का डेटा इनपुट लिया और आपने उसको क्या कर दिया, प्रिंट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी आप सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको ऐसा लिख लीजिएगा, ये मैंने क्यों यूज किया है, क्लियर द बफर। ओके, so we move on next example. नेक्स्ट आता है आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर। We can have a structure variable as a member of another structure. Accessing structure members using below method, we can access the structure member. अब स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। फर्स्ट आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट इनर स्ट्रक्चर के मेंबर का नाम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए EMP आपका आउटर स्ट्रक्चर है और DOJ दिस इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपका इनर स्ट्रक्चर है। तो आउटर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम है E और इनर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम है D। तो अगर आपको आउटर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखते हैं, E.name E.empno। अगर आपको इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि D.dd D.mm D.yy। आपको ये जो सिंटेक्स मैंने बताया, पहले आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, फिर इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, देन मेंबर का नाम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज करने वाले। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम एग्जांपल किसका देख रहे हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर का। पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h। आपने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम है EMP। दिस इज योर आउटर स्ट्रक्चर, दिस इज योर आउटर स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर अब आपने क्या कर दिया है कि इस आउटर स्ट्रक्चर के अंदर एक दो फील्ड ले ली, कैरेक्टर एरे में नेम, राइट, और एक इंटीजर में EMPno, राइट। अब इसके बाद आपने एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया DOJ, इसमें आपने 3 फील्ड ले ली, इंट DD और इंट MM इंट YY। ठीक, तो ये मैंने मान लीजिएगा ये इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम D है और आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम E। ठीक, सो लेट्स सी द एग्जांपल। अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि सर इंटर नेम, तो नेम तो आउटर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम है, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे कि सर स्कैनर, ये गेट एस लगा दीजिएगा क्योंकि नेम में स्पेस हो सकता है, तो क्या लिखेंगे E.name। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉय नंबर है वो आउटर स्ट्रक्चर का ही मेंबर है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे इंटर EMPno देन स्कैनर। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर इंटीजर टाइप का, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड एड्रेस ऑफ क्या हो जाएगा E.empno, राइट। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर को इनपुट लेना है, प्रिंट है, तो आपने सिंपल लिख दिया इंटर डेट। तो डेट के लिए आप क्या लिखेंगे, स्कैनर। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, डेट इंटीजर टाइप का है %d, आप ऐसा नहीं लिख सकते D.dd। आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम जो कि है E, फिर इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम जो है D, राइट, और क्या लिख दिया आपने DD। ऐसे ही आप मंथ के लिए कर लेंगे, प्रिंट है कि सर इंटर मंथ स्कैनर, दिस इज %d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E.d.mm। सेम कॉन्सेप्ट ईयर के लिए हो जाएगा, प्रिंट है
इंटर ईयर, क्या नहीं परसेंटेज डी, क्या लिखेंगे ई डॉट डी डॉट वाई वाई वाई। तो ये आपने इनपुट लेने का काम कर लिया। अब आपको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए आप लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन नेम। दिस इज नेम की अगर हम बात करें तो वो कैरेक्टर एरे टाइप का है और आउटर स्ट्रक्चर का मेंबर है। तो यहाँ लिख देंगे ई डॉट नेम। ऐसे ही एम्प्लॉय नंबर को आप प्रिंट करवा देंगे EMPNO। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज डी और यहाँ पर आ जाएगा EMPNO। अब प्रिंटर, अब मुझे DOJ प्रिंट करवाना, तो मैं परसेंटेज डी स्लैश परसेंटेज डी। ठीक, तो मुझे वो सारी चीजें प्रिंट करवाना, तो क्या लिखेंगे ई डॉट डी डी, पहले में डेट प्रिंट करेगा, फिर दूसरा ई डॉट डी डॉट mm मंथ प्रिंट करेगा, ई डॉट डी डॉट वाई वाई वाई, ये क्या प्रिंट कर देगा ये, राइट। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट। तो पहले आ रहा है इंटर नेम राम, एम्प्लॉय नंबर 121, द डेट मान लीजिए मैंने पास कर दिया आज का ईयर 23। ओह स्कैनअप नहीं लगाया तो मुझे 1 मिनट रुकना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ की है। वो एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं किया, स्कैनअप में इंश्योर कर लीजिएगा कि आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करना है, अगर नहीं करोगे तो इनपुट आपसे नहीं लेगा। ठीक, स्कैनअप में मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं किया था इसलिए वो। तो आप नेम में मान लीजिए आपने इंटर किया रहा एम्प्लॉय नंबर 123 और डेट 23, मंथ 11, ईयर 2021। तो नेम डन। अच्छा यहाँ पर जो है कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, परसेंटेज डी ई डॉट डी डॉट डी डी ई डॉट डी डॉट एम एम ई डॉट डी डॉट वाई वाई। यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज किया है स्ट्रिक्ट DOJ। ये थोड़ा सा दूर दूर आपको देना है। काम 1 2 3, डेट 12, मंथ 11, ईयर 2021। ठीक, तो इस तरीके से आ रहा है। वो EMPNO एक ही लाइन में आ रहा है ना, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर के बाद यहाँ पर मैंने स्लैश एन नहीं लगाया, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। नेम में मैंने इंटर किया राम 123, एम्प्लॉय नंबर, डेट 11, मंथ 12, ईयर 2021। तो देखिए नेम, एम्प्लॉय नंबर और 11/12/2021, दिस इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज स्ट्रक्चर, हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग, how to create structure variables in C, memory representation of structure members, how to initialize structure members, how to access the structure members in C programming, structure with array and structure with pointer and nested structure. Okay, so next session we talk about what is union and what is inner. Thank you.